پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ جلال کے بادشاہ، میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے افضل ترین نام میں آج شب آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں ذات باری تعالی کے لیے، جس کے نام سے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اور جس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم یہاں پر ہیں اور جس کی آواز کو سننے کے لیے ہم اپنے کان لگائے ہوئے ہیں، اور دعا ہے کہ وہی خداوند جس نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس کلام کو تحریر کروایا ہے، اس کے بھیدوں کے سمجھنے میں وہ میری اور آپ کی رہنمائی فرمائے۔ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو محبت کے رسول یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا، اس کے 20 باب پر ہم ہیں، اور آج ہم اس 20 باب کی اختتامی 3 آیات پر غور کریں گے، اور پھر خداوند نے چاہا 21 اور 22 2 ابواب اس کتاب کے باقی ہوں گے جن پر ہم سٹڈی کریں گے اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو۔ لیکن آج میں اس 20 باب کی 13 14 اور 15 آیات پر آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ یہ باب تو مختصر سا ہی تھا، لیکن ہم نے ان آیات کے وسیلہ سے بھاری برکت حاصل کی ہے۔ 11ویں آیت سے ہم نے دیکھا کہ مقدس یوحنا روح القدس کی تحریک سے روح میں رویا میں ایک سفید تخت کو دیکھتے ہیں جو آخری عدالت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ سفید تخت بزرگی اور پاکیزگی اور کامل انصاف کو پیش کرتا ہے۔ سفیدی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، سفید کلر، پاکیزگی، راست بازی، انصاف اور بزرگی کی طرف۔ اور پھر اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے۔ ہم نے بات کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ زمین اور یہ آسمان، جس زمین پر ہم سیاہ کو سفید کر دیتے اور سفید کو سیاہ کر دیتے اور اس فضا کو ہم نے آلودہ کر دیا، یہ فضا، یہ آسمان اور یہ زمین پھر نہ رہیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے چھوٹے اور بڑے، عمر کے اعتبار سے بھی، مرتبہ اور پوزیشن کے اعتبار سے بھی، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، ہر مردے کو میں نے اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، تمام مردوں کو۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ ان مردوں کی طرف اشارہ ہے جو مر گئے تھے لیکن اپنا جیون، اپنا دل مسیح خداوند کے سپرد نہیں کیا تھا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کتابیں کھولی گئیں۔ کتابیں، ہم نے بات کی تھی کہ یہ ان کے اعمال ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی
किताब हयात, और इसकी बाबत लिखा है, उन किताबों में जो कुछ लिखा था उनके मुताबिक, उनके कामों का, उनके अमाल का, उनके अफआल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। और अब आयत 13 तलावत करता हूं। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। आयत 14, फिर मौत और आलमे अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और आखिरी और 15 आयत, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। पस मंजर के तौर पर 11 और 12 आयात इसलिए थोड़ी सी नजरसानी की थी कि हमें पता चले कि हम किस तरफ जा रहे हैं और सियाको सबाक में क्या है। इन आयात के मुताबिक हम देखते हैं कि वो मुर्दे कहां कहां से आए थे जो उस तख्त के सामने आ खड़े हुए, मौजूद हुए। वो कहां कहां से आए थे, और हम यहां पर देखते हैं, एक तो वो समुंदर से, यानी वो जो शायद शिप्स, समुद्री जहाज और कश्तियों के गरकाब होने के सबब से, या वेल्स ने जिनको खा लिया उनकी बात हो रही है, या समुंदर के पानी ने किनारे पर आए हुए लोगों को हड़प कर दिया और उनका पत्ता तक न मिला। वो जो समुंदर में गर्क हो गए, यहां उनकी बात हो रही है कि समुंदर ने उन मुर्दों को दे दिया। और नंबर 2, आलमे अरवाह। उलमा के इसके बारे में मुख्तलिफ ख्याल हैं, और एक मोतबर बात यह कि मसीह खुदावन के जी उठने के बाद, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए उससे पहले, कि वो तमाम मुर्दे जो उससे पहले मर चुके थे, उलमाए कराम ये ख्याल करते हैं किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए कि वो एक खास मकाम पर जमीन के नीचे की बात हो रही है, पाताल की बात हो रही है, हेदिस। वहां पर उनकी रूहें मौजूद थीं जिनमें जाकर मसीह खुदावन ने मनादी की थी, और वो कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। ताहम जब हम आलिम कहते हैं तो ये इल्म वाले आलम की बात नहीं हो रही है, ये दुनिया की तरफ इशारा हो रहा है। जैसे अरबी में रब्बुल आलमीन, जहानों का रब, पालने वाला। आलमीन आलम की जमा है, यह दुनिया की तरफ इशारा है। अरवाह यह सीगा जमा है, सीगा वाहिद का जो है रूह, रूह की जमा अरवाह है। यानी एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा मकाम जहां पर रूहें ऑलरेडी मौजूद थी। ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है दुनिया की, आलम की, आलमे अरवा, आलम की,
जो दुनिया की है, बाज़ औक़ात अगर कोई शख्स इंतहाई गौर से बैठा हुआ हो, हमारी कोई बात उसके पल्ले ना पड़ रही हो, तो शायद हम हला कर कहेंगे, ओ भाई जी केड़ी दुनिया चो। हाँ, हालांकि इसी दुनिया में है, लेकिन इसका मतलब ये शायद वो अपनी सोचों की दुनिया में कहीं मगन है, गुम गश्ता। और हम कहते हैं आप कौन सी दुनिया में हैं? तो आलमे अरवाह यानी एक ऐसा मुकाम जहां रूहें मौजूद थीं। तो क्या हुआ जी? समुंदर ने भी अपने मुर्दे दे दिए। अमानत में खयानत नहीं करता। और आलमे अरवाह ने भी अपने मुर्दे दे दिए, लिखा है। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दे, और मौत, और फिर तीसरे नंबर पर आलमे अरवाह ने भी अपने अंदर के मुर्दे दे दिए। ये मौत से मुराद वाकई फिजिकल मौत की तरफ इशारा है, जो जिस्मानी मौत है। यानी वो तमाम जिन पर मौत ने राज किया। जैसे मैं आपकी तवज्जो पहला कुरिन्थियों और इसका 15 बाब और इसकी 26 आयत की तरफ लिए चलता हूं, जहां पर लिखा है, सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। ये तो बात हम अगली आयात में देखेंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं, मसलन मैं आपकी तवज्जो रोमियो के खत की तरफ लिए चलता हूं, 5 बाब और उसकी 12 आयत में, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो आप देख रहे हैं, मौत ने भी जितने लोग मर गए, जो मौत की गिरफ्त में थे, उसने उनकी ग्रिप को ढीला कर दिया, दे दिए अपने मुर्दे, छोड़ दिया अपना शिकंजा और पंजा। और फिर अगर मैं मुकद्दस पतरस के दूसरे खत की तरफ आपकी तवज्जो ले जाऊं, और इसका 3 बाब और इसकी 13 आयत में कुछ यूं लिखा है, लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हमने आसमान और नई जमीन का इंतजार करना है, करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी हुई है। जिनमें रास्तबाजी नहीं, उन्होंने फना हो जाना है, खा वो आलमे अरवा है, खा वो मौत है, और खा वो समुंदर में मर मिटने वाले लोग, ये तमाम अपने मुर्दों को दे डालेंगे। यही लोग वो लोग होंगे जो अब उस तख्त के सामने मौजूद होंगे। तो भाई इससे मुराद ये है कि कोई भी शख्स खुदा की अदालत से बच नहीं पाएगा। जो भी आज मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं लाता, वो चला जाएगा इस दुनिया से, लेकिन खुदा की अदालत से वो बच नहीं पाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बहाने तैयार किए हुए हैं, लेकिन राह, हक और जिंदगी एक ही है, और वो खुदाबंद यीशु मसीह है। और आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से गुनाहगार अपने गुनाहों से निजात
पा सके। अब इन मुर्दों की बाबत हम इस मुकाशफा 20:13 में क्या देखते हैं? और उनमें से हर एक के आमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। अगर आपको याद हो, अगर आप गुजरी बाइबल स्टडी में मेरे साथ हुए हो, तो याद है कि मैंने आपको यह बताया था कि यह अदालत ईमानदार लोगों की नहीं है, ये बेईमान लोगों की, ये तमाम के तमाम वो हैं जिन्होंने मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया और अपने आप पर गुनाह को राज करने दिया है। इन तमाम की अदालत होगी, और जब लिखा है ना उनके आमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया, बात ऐसे लगता है जैसे ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको याद हो तो मैंने किसी वक्त यह कहा था कि खुदा जिस काम का इरादा करता है गोया वो हो जाता है। अगरचे ये होगा, लेकिन खुदा के प्लान में ऑलरेडी कह दिया तो हो गया। यही एक सदाकत है जो यहां हम देखते हैं। और उनके आमाल के मुवाफिक इंसाफ। मैं कोई गलत फहमी आपके जहन में पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग अजाब में और कर्ब में और दुख में होंगे। ये बात जानने और समझने से ताल्लुक रखती है। उनके आमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। और जब हम देखते हैं कि मौत और आलमे अरवाह इनका क्या हुआ, इनका क्या हाल हुआ होगा। आपको याद है कि पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को मुखातब होते हुए यूं फरमाते हैं कि फिर यह कौल पूरा होगा कि ए मौत तेरा डंक कहां रहा। अब मौत हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगी, आलमे अरवाह खत्म। ये सब का सब तमाम हो जाएगा, क्योंकि अब खुदावन सब कुछ नया बना डालेंगे। अहद अतीक में अंबियाए असगर में से एक छोटी सी किताब बनाम हूसिया, इसके 13 बाब और इसकी 14 आयत में लिखा है, मैं उनको पाताल के काबू से निजात दूंगा, यानी छुड़ाऊंगा। मैं उनको मौत से छुड़ाऊंगा। ए मौत तेरी वबा कहां है, ए पाताल तेरी हलाकत कहां है, मैं हरगिज रहम न करूंगा। और इसी कौल को मुकद्दस पौलुस लेकर कहते हैं कि फिर वो कौल पूरा होगा जो हूसिया नबी की मार्फत कहा गया कि ए मौत तेरा डंक कहां रहा। उसके बाद कोई और मौत नहीं होगी, जैसा हम अगले अबवाब में देखेंगे। तो लिखा है, फिर मौत और आलमे अरवाह खत्म। जिन पर मौत ने राज की फिजिकली, लेकिन रूहानी तौर पर वो जिंदा नहीं हुए, रूहानी तौर पर भी मरे ही हुए और जिस्मानी तौर पर मरे ही हुए। उनकी बाबत बात हो रही है कि मौत और आलमे अरवाह आग की झील में डाले गए, यानी मुकम्मल तौर पर नाबूद हो गए। और इसकी बाबत लिखा है कि ये आग की झील दूसरी मौत है। और मुझे उस कौल को, जो किसी आलम का है,
फिर से दोहराने की जरूरत करनी चाहिए, और वो ये है कि जो शख्स एक दफा पैदा हुआ वो 2 बार मरेगा। एक दफा पैदा हुआ वो 2 बार मरेगा। एक दफा पैदा होने से मुराद जैसे मैं और आप बतने मादर से पैदा हुए, 2 बार मरेगा। एक तो फिजिकली हर बशर मरता है, और दूसरा रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर मौत आएगी, रूहानी तौर पर मौत से मुराद खुदा से अबदी जुदाई, सेपरेशन। लेकिन जो शख्स 2 बार पैदा हुआ वो 1 बार मरेगा। 2 बार पैदा हुआ से क्या मुराद है? निकोदीमस भी इस बात को नहीं समझा था। इससे मुराद ये कि एक तो वो बतने मादर से पैदा हुआ जैसे हम सब पैदा होते हैं, और नंबर 2 वो रूह और पानी से पैदा हुआ, नया जन्म लिया है। निजात दहंदा मसीह खुदावंद पर ईमान लाया है। ये उस शख्स से मुताल्लिक बात हो रही है। और हम 20 बाब की 6 आयत में भी इस बात को देख चुके हैं। मुबारक और मुकद्दस वो है कौन? जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। तो जी, जो पहली क़यामत में शरीक होने वालों से मुताल्लिक क्या कहा गया कि वो मुबारक और मुकद्दस है। गौर कीजिए। और दूसरी तरफ जो हम यहां पर 20 बाब की 12, 13, 14 में देखते हैं, यहां पर इन मरने वालों के लिए मुबारक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। अगर होता भी तो अफसोस का लफ्ज इस्तेमाल होता, क्योंकि ये लोग वो हैं जो दोनों पहलुओं के एतबार से अबदी हलाकत में रहे हैं और होंगे। ये उनकी बात हो रही है। तो इसीलिए तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि मसीह खुदावंद पर ईमान ले आए, नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करें, ताकि 2 दफा ना मरें। फिजिकली मौत ईमानदारों के लिए हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी में दाखिले का दरवाजा है। इसी से तो हमेशा की जिंदगी का आगाज होता है। और फिर आयत 15 जो गौर तलब है, इस आयत 15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना मिला। इससे पहले भी हम 11वीं 12वीं आयत में किताबे हयात का जिक्र कर चुके हैं, और कई बार मुकाशफा की किताब में हम इस किताबे हयात, जिंदगी की किताब की बाबत बात कर चुके हैं। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। इसका मतलब ऑलरेडी इंसाफ हो चुका है, और खुदा अब मजीद डिले नहीं करेगा। किताबे हयात में नाम नहीं, और भले जहां कहीं भी हो, नादरा के पास हो, हुकूमतों की रजिस्ट्रेशन में हो, चर्च की मेंबरशिप में हो, लेकिन अगर नाम किताबे हयात में नहीं,
बर्रे के लहू से लिखा नहीं गया। हमने अपने हथियार डाले नहीं, मसीह यस्सु को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो फिर उस किताब हयात में जो जिंदगी की किताब है, मुर्दों के नाम तो हो नहीं सकते, जिंदों के ही तो होंगे। इसीलिए यह बात हो रही है कि जिस किसी का नाम उस किताब हयात में ना मिला, इनमें से किसी का भी नाम किताब हयात में नहीं होगा तो क्या होगा? उनको गंधक और आग से जलने वाली झील में डाला जाएगा। और याद कीजिए, मैं फिर से यह बात याद दिलाता हूं, खुदा ने आग और गंधक से जलने वाली झील इंसानों के लिए नहीं बनाई थी। यह इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए जो आसमान से पटक दिए गए थे, उनसे मुताल्लिक बात हो रही है, उनके लिए बनाई गई थी। लेकिन आज की दुनिया में वो तमाम जो इब्लीस को अपना बड़ा समझते और उसकी पैरवी करते और अपनी सारी जिंदगी उसको खुश करने के लिए गुजार देते हैं, उनकी बाबत बात हो रही है कि वो तमाम लोग यकीनन इस गंधक और आग से जलने वाली झील में जाएंगे, अगरचे ये इनके लिए नहीं थी। इंसान को इसलिए बनाया गया कि वो रब की हम्द करे, उसकी तारीफ और तमजीद करे, लेकिन यह करना उसको गवारा नहीं हुआ। तो इन स्टडीज के मुताबिक वो हैवान भी आग और गंधक से जलने वाली झील में डाला गया, वो झूठा नबी भी यानी मुखालिफे मसीह और शैतान भी उस अबदी हलाकत में, मौत भी और आलमे अरवा भी, सब का काम तमाम हो गया और ये जमीन और ये आसमान भी उसके सामने से भाग जाएंगे। कहानी खत्म। और अब खुदा एक नए आसमान और एक नई जमीन की बुनियाद डालेंगे, जहां खुदा के मुकद्दसीन अबदी राज करेंगे, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के साथ। वो कैसी जगह होगी? इंतजार कीजिए 21 और 22 अबवाब का जब हम मुतालिया करेंगे तो। लेकिन इस वक्त से फायदा उठाते हुए मैं ये अर्ज करूंगा, मेरे भाई और मेरी बहन, खा आपके रिलीजन के खाना में कोई ही मजहब क्यों ना लिखा हुआ हो, खुशखबरी यह है कि मसीह यस्सु ना कोई मजहब लेकर आए और ना ही उन्होंने किसी मजहब को अप्रिशिएट किया और ना ही रद्द किया। आपका मजहब और दीन खा कोई ही क्यों ना हो, आप रहें उस दीन और उस मजहब में। एक बात यह कि आप खुदाबंद यीशु मसीह की सिम अपने आप में इंस्टॉल कर लें, क्योंकि यही वो राह हक और जिंदगी है जो फिरदौस तक जाने वाली है। इसके अलावा कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं है। अंधेरे में ना रहें, रोशनी में और उजाले में आ जाए। और यही वो मैसेजेस हैं जो आने वाले दिनों में मैं जिंदगी टेलीविजन पर रिकॉर्डिंग्स के लिए तैयार हूं। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और हम सब को मसीह खुदावंद को अपनाने, उन पर ईमान लाने
कि वो मेरे निजात दहंदा, मेरे इब्जी और कुफारा हैं, का फजल अनायत फरमाए कि हम तारीकी में ना रहें, हम नूर और उजाले में आ जाएं। छोटी सी दुआ करता हूं अपने लिए और आप सब के लिए भी। जिंदगी के मालिक, बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद, आज शब में आपकी पाक हजूरी में बड़ी आजिजी से आता हूं। इस कलाम की सुंदर बातों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। दुआ करता हूं कि ये बातें मुझे ऐसन तरीका से आपकी बनाई हुई मखलूक तक, इंसानों तक पहुंचाने का, कन्वे करने का फजल अनायत फरमाइए। और जो कुछ कहूं बिला खौफ न डर होकर, क्योंकि ये जिंदगी की बातें हैं। और ऐ पाक रूह, इस कलाम के वसीला से आप उन तमाम लोगों को तब्दील कीजिए जो आपको नहीं जानते, उनकी सोचों को कन्वर्ट कीजिए, उनके दिलों को तब्दील कीजिए। आप तो सब कुछ नया बना सकते हैं खुदावंद। छू लीजिए और अपने लोगों की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली ले आइए। और दरखास्त करता हूं खुदावंद, जितने भी इस वक्त मेरे सामईन और नाजरीन हैं, इनमें से हर एक को बरकत पर बरकत दीजिए और इनके वसीले से अपने नाम को जलाल और इज्जत दीजिए। हर बीमार शफा पाए यस्सु के नाम से, हर परेशान हाल और लाचार यस्सु के नाम से आजाद हो जाए। हर वो जो डिप्रेशन के बोझ तले दबा हुआ है, यस्सु के नाम से ठीक हो जाए। और खुदाबंद यस्सु, आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। सुनिए हमारी दुआ को और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदाबंद यस्सु अल मसीह के कादिर, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदाबंद आप सबों को इस कलाम की खूबसूरत बातों के वसीला से ढेरों बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए आप खुदावंद की पनाह और उसकी अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू।